remains and waste products of organisms. These microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substances into simpler inorganic substances. Write it as it is described. अपने मन से नहीं लिखोगे answers. That go into the soil and are used up once more by the plants. This is your point number 3. So basically the producers, the consumers and the decomposers form the ecosystem. The ecological balance is based on all of these three. Either of them goes down, the entire balance is disturbed and the ecosystem will be disrupted. What is it? फोन में क्या चल रहा है? ठीक है. मैम एक बार थोड़ा ऊपर करना. Please mark the producers. Point number 1, the consumers. Point 2 and point 3, decomposers. क्वेश्चन लिखो. decomposers पर अलग से क्वेश्चन आता है. What are decomposers? Explain with example. Exactly ऐसे ही लिखोगे. वो लोग क्या करते हैं? किसको कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. की वर्ड्स पढ़ना नहीं है, बोर्ड पे जाएगा ना. वो पीछे आएगा. अभी हो जाएगा. आज नहीं, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा. आगे फूड चेन है वो. While creating an okay, pay attention. Write the aquatic organisms in order of who eats whom. Form a chain of at least 3 steps. कोई बता सकता है aquatic में? तो पहले सी ग्रास आएगा. सी ग्रास को कौन खा रहा है? फिश. और फिशेस को कौन खाता है? शार्क, फ्रॉग, एनीथिंग. ठीक है. किसने बोला नहीं खाता? It is both. It is both. Lives in aquatic as well as on land. चलो. Happy realization. Now this is very very important. Star mark this. Food chain and web. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ये. Food chain will involve only 4 to 5 animals or plants, but the food web will involve the entire ecosystem of producers, consumer and decomposers. In activity 15.4 we have formed a series of organisms feeding on one another. Mark, this is the definition. Question लिखो. Define food chain. Mark this as the answer. A series of organisms feeding on one another. A series of organisms feeding on one another. Shri, ध्यान दो. Is waste. This series of organisms taking part at various biotic levels form a food chain. Each step or level of the food chain, please mark. Each step or level of the food chain forms a trophic level. Now coming to the levels, pay attention. Each step or level of the food chain forms a trophic level. Mark this for 1 mark. Fill in the blanks. The autotrophs. Autotrophs कौन होते हैं? Who make their own foods, or the producers are at the first trophic level. They fix up the solar energy, make it available for the heterotrophs or the consumers. The herbivores or the primary consumers come at the second, small carnivores or the secondary consumer at the third, and larger carnivores or the tertiary consumers form the fourth trophic level. Extremely important question. Question लिखो. Explain the 4 trophic levels. उसका दूसरा क्वेश्चन है. ये सब एक्सप्लेन है, वो डिस्क्राइब है.
चलो बताओ. वो ट्रॉफिक है, ट्रॉफिक है. फिक अब पिक बोले तो हम लोग को थोड़ा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या रहेगा? प्रोड्यूसर्स का, ऑटोट्रॉफ्स का, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं. सेकेंड लेवल पर कौन आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो क्या खाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं. ठीक है. थर्ड लेवल पे क्या आएंगे? स्मॉल कार्निवोर्स, जो क्या खाएंगे? कंज्यूमर्स को खाएंगे, बट स्मॉलर कंज्यूमर्स. ठीक है. और लास्ट क्या रहेगा? लार्ज कार्निवोर्स, जो पूरे हमें भी खा जाएंगे. ठीक है. समझ में आ गया सबको? 4 ट्रॉफिक लेवल्स क्लियर है? यस. बताओ डीकंपोजर्स कहाँ आएंगे? एक सेकेंड रुको ना, एक सेकेंड. डीकंपोजर्स कहाँ आते हैं? डीकंपोजर्स आएंगे नहीं ट्रॉफिक लेवल 4 तक, क्योंकि मरने के बाद ही डीकंपोजर्स का एक्शन होता है. ठीक है. चलो. We know that the food we eat acts as a fuel to provide us energy to do work. As we all know, ऑटोट्रॉफ्स एक लाइट एनर्जी यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. जब ये लाइट एनर्जी उनके लिए अवेलेबल होती है तो ही वो फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं. व्हेन दिस फूड इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, द एंटायर ट्रॉफिक लेवल इज feeded. So the entire trophic level basically depends on the light energy which is used by the autotrophs to synthesize food. समझ में आ रहा है सबको? Thus the interactions among various components of the environment involves, underline, flow of energy from one component of the system to another. इसका मतलब है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एक अलग अलग एनर्जी रेंज फ्लो होती है, जो इम्पॉर्टेंट है हर एक ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म के लिए. आपको खाना बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, आपको कंज्यूम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए. So what do you think would be the most trophic level which contains the maximum energy? किसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इन अबंडेंस? Why do you think so? हंट करने के लिए भागना पड़ता है. Yes. सबसे पहले प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, because they on the first tier is the first trophic level. वहाँ पर उनके पास abundance of sunlight energy होती है. ये sunlight energy degrade होते जाती है, consume होते जाती है, and you all know at each level the energy will be used as well as wasted. आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको पता है कि फ्रिक्शन में भी एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि हीट रिलीज होता है. जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी से भी हीट रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, तो वो हीट क्या हो रही है? हमारे एनर्जी का वेस्टेज है. वैसे ही हर ट्रॉफिक लेवल पर इनिशियली द एनर्जी इज मैक्सिमम, बट एज यू गो डाउन द टायर द एनर्जी गेट्स रिड्यूस्ड बिकॉज heat is evolved in each trophic level which results in wastage of energy. समझ में आ गया सबको? So the maximum energy will be at the first trophic level and the least would be at the fourth trophic level. ठीक है? मार्क करेंगे. As we have studied, the autotrophs capture the energy present in the sunlight and convert it into chemical energy. Life processes में पढ़ा था. Conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. Remember? Yes. This energy supports all the activities of the living world. From autotrophs, the energy goes to the heterotrophs and decomposers. However, as we saw in the previous chapter, sources of energy, when one form of energy is changed to another, stomach, key point. When one form of energy is changed into another, the frictional force is getting changed into heat. Same way the producer's light energy is getting converted into chemical energy. जब एक form of energy दूसरे form of energy में convert होती है, then some energy is lost to the environment in form which cannot be used again, जैसे कि heat. The flow of energy
energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that comprehensive question for 5 mark alone. इतना वैल्यू है इस क्वेश्चन का, ध्यान दो. The green plants in the terrestrial ecosystem capture about 1% energy of sunlight. ये facts है, आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है. The green plants in the terrestrial मतलब लैंड पर रहने वाले, capture about 1% of energy of sunlight that falls on the leaves and convert it into food energy. When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion. सब अवेयर है, डाइजेशन में भी एनर्जी लगती है, स्लीपिंग में भी एनर्जी लगती है, and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. An average of star mark 1 mark question. कितने % of energy? 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumers. Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers. इस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे. 10% फिर उसका 10%. यस, जैसे 5000 kJ किलो जूल्स एनर्जी प्रेजेंट है फर्स्ट लेवल पर, तो समझ लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा द टाइगर इज द फाइनल कार्निवोर, तो वो कौन से लेवल पर रहेगा? 4. तो उसके पास कितनी एनर्जी बचेगी? 40%. 5000 का 10% 500 बचेगा, 5 के बाद 50, 50 के बाद 5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी. यस, 10 10 10 10 you reduce like that, you don't add 10 10 10 and 40 माइनस करो, ठीक है. समझ में आ रहा है सबको? ओके, सिंस फॉर द अमाउंट ऑफ, समझा? क्लियर है सबको गर्ल्स? ठीक है, आगे बढ़ो. मार्क ऑल द डाउट्स. Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers. मतलब जो भी एनर्जी है at the initial step, उसका सिर्फ 10% दूसरे स्टेप पर रहेगा, उसका 10% तीसरे और उसका 10% चौथे स्टेप पर अवेलेबल रहेगा. कैसा उल्टा बोल रहे? फोर्थ लेवल से फर्स्ट लेवल को फर्स्ट से फोर्थ सबसे मैक्सिमम एनर्जी, अबंडेंस ऑफ एनर्जी सनलाइट प्लांट्स में ही रहेगी. तो उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है ना, चल नहीं पा रहे तो. Since so little energy is available for the next level of consumers, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. ध्यान दो. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 trophic levels. There are generally a greater number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem. Star mark 3 mark question. आपको ये ट्रायंगल का मतलब समझ में आता है? जहाँ पे भी ट्रायंगल रहता है, जब आप 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स लोगे तो आपको समझ में आएगा ये ट्रायंगल का क्या मतलब होता है. द टॉप ऑलवेज कंसिस्ट द लेसर अमाउंट and the bottom is always the broader side. Broader side मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या रहेंगे आपके? यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स रहेंगे और ऊपर जाते जाते ऑर्गेनिज्म सबसे कम हो जाएंगे. The triangle always represents the tapering scenario. Tapering scenario मतलब सबसे broader spectrum में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स रहते हैं and as you go up the trophic levels the organisms decrease in number. इसका मतलब ये है और ये एक क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर कहीं पे भी नहीं है. What I explained to you is the answer and you always have to supply this. तो इसके सामने लिख दो drop. There are generally a greater number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem. उसका आंसर क्या है? 3 मार्क का वो बस ट्रायंगल का है. जो मैंने अभी बोला वो. बस वही बोल रहा.
The greatest number is of the producers. The length and the complexity of food chains vary greatly. Each organism is generally eaten by two or more other kinds of organism, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web. समझ में आ गया? क्योंकि एक एनिमल को सिर्फ एक दूसरा ऑर्गेनिज्म तो मुझे बोलो ना, उसको बोलकर क्या होगा, वो क्वेश्चन देगी. क्वेश्चन लिखो. देयर विल बी टू क्वेश्चंस. एक तो मैंने मार्क करवाया ये लाइन. देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम. क्वेश्चन मार्क करो फॉर 3 मार्क्स. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे. केस बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ड्रॉ करना है, और जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं एंड देन इट इवेंचुअली गेट्स रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ. हाँ, और ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा. क्वेश्चन लिखो. मैं अभी बता रही हूँ. ये ड्रॉ करना है और उसके बाद जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसको ही एक्सप्लेन करना है आपको कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में प्रोड्यूसर्स होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. उसके बाद 4 ही ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं और ऑर्गेनिजम्स कम होते जाते हैं जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल्स पर जाते हैं, बिकॉज एनर्जी गेट्स वेस्टेड एंड रिड्यूस्ड. ठीक है, आप क्वेश्चन लिखो. Describe the flow of energy from the highest trophic level to the lowest. अब इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये दिया रहेगा आपको, जैसे मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया वैसा न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दिया जा सकता है एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन विद द सेम पॉइंट्स, बट ये बुलेट पॉइंट्स आने ही चाहिए. एग्जैक्टली डिट्टो आपको लिखना है. 1 2 3 4 5 6. हाँ, अपने ओन वर्ड्स में पूरा कॉपी नहीं करना है, जो मेन है वही लिखना है. 4 marks, 4M. .1 Identification. हाँ, ये फूड वेब. अब इसको कंप्लीट करने के लिए भी आता है तो इसको लर्न करना है. ठीक है, अब इसको लर्न कैसे करोगे? सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा? लोअर लेवल, प्राइमरी. आर यू डन? बोलो, वहीं से बोलो ना. आई हैव द क्वेश्चन पेपर. क्लियर नहीं है? बता दो ना, यहाँ पे भी लिख रहे हैं ये लोग. क्लियर नहीं है? दिखाती हूँ बाद में बुलाती हूँ. ये लोग जाएंगे फिर बुलाती हूँ. इसे एक क्वेश्चन छोड़ दो. चलो सब लोग ध्यान देंगे. द लोअर लेवल इज द प्राइमरी. प्रोड्यूसर्स प्लांट्स है. ठीक है, प्लांट्स को कौन खा रहा है? डियर को कौन खा रहा है? ये प्लांट्स को कौन खा रहा है? इंसेक्ट. इंसेक्ट के बाद फ्रॉग. फ्रॉग के बाद स्नेल. वो क्या है फिर? अरे क्या है? डीकम्पोजर. फिर यहाँ पर प्राइमरी
फॉरेस्ट Aquatic. ये aquatic है, ये वाले reptiles है, reptiles है या amphibians है? ग्रासलैंड में एकदम डिप्लोमेटिक आंसर दिया ना, grasslands, थैंक यू सो मच reptiles and amphibians, ठीक है? ये decomposer है, पहले ही बोल दिया मैंने, ये decomposer है। और ये वाला terrestrial। मार्किंग्स कर लो। क्यों? Pay attention, pay attention, question लिखो। The flow of energy, Arnav, question लिखो। The flow of energy is unidirectional. This is a statement based question. The flow of energy is unidirectional. किसी ने मुझे बोला था रिप्रोडक्शन का पीडीएफ वापस भेजना है, किसने बोला था? आपने बोला था, ठीक है। The flow of energy is unidirectional. Explain. 5 marks. Pay attention. नहीं आएगा, बट ऐसा देंगे ही नहीं आपको, कम मार्क्स का ही देंगे। आइडेंटिफिकेशन, चलो फ्लॉ, ओके। हर टॉपिक के बाद मैं क्या यही बोलते रहा हूँ, ओके ध्यान दो, ओके ध्यान दो। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो, ध्यान दो हार्दिक। From the energy flow diagram, two things become clear. Firstly, the flow of energy is unidirectional. इसका क्या मतलब होता है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन, that is upwards, ठीक है? वापस आती है नीचे एनर्जी फ्लो, वापस नहीं आ सकती। Firstly, the flow of energy is unidirectional. The energy that is captured by the autotrophs does not revert back to the solar input. Basic thing है कि जो प्लांट्स लाइट एनर्जी कैप्चर करते हैं सन से, वो वापस सनलाइट के पास नहीं पहुंच सकती, ठीक है? दिस इज द पॉइंट नंबर 1, मार्क। एंड द एनर्जी व्हिच passes to the herbivores does not come back to the autotrophs. मैंने ब्रैकेट्स बनाया है, प्लीज उसको पॉइंट 1 मार्क कर दो। सेकेंड, एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली, इसका मतलब है आगे, through the various trophic levels, it is no longer available to the previous level. Point number 2, जो एनर्जी पास ऑन हो गई है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, तो वो एनर्जी वापस प्रोड्यूसर्स में नहीं बचेगी, रिवर्ट भी नहीं आएगी और उनके अंदर वो एनर्जी बचेगी भी नहीं, ठीक है? Secondly, the energy available at each trophic level gets diminished progressively due to the loss of energy at each level. Point number 3, अब ये आपको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करने आ सकता है, इसके आगे लिखो। I hate it and therefore I don't teach physics. देखो यहाँ पर, secondly the energy available at each trophic level gets diminished progressively due to the loss of energy at each level. इसका मतलब है जो रेट ऑफ एनर्जी डिमिनिशिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। रेट इज 10% बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स डिमिनिश्ड एट द ईच ट्रॉफिक लेवल। 5000 से 500, 500 से 50, 50 से 5। हमने एक एग्जाम्पल किया, तो ये न्यूमेरिकली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप चाहो तो आप बाजू में लिख सकते हो। और प्लीज़ ध्यान देना कि यूनिट्स पर मार्क्स ना कटवाओ आप लोग। किलो जूल्स, जूल्स इज द एनर्जी, जो एनर्जी के लिए यूनिट होता है जूल्स। हाँ, फोर्थ, another interesting aspect of food chain is how
unknowingly some harmful chemicals enter your body through the food chain. Point number 4. That is so very clear that if the aquatic animal, for example fish that you have consumed, for example the chemical that the aquatic animals उन्होंने जो लिया होगा कंज्यूम किया होगा वो आपके बॉडी में भी आ जाएंगे. और ये सिर्फ एनिमल्स के थ्रू नहीं, प्लांट्स में भी अगर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं तो वो आपके बॉडी में आना ही है. समझ में आ रहा है? सो ड्यू टू देयर इज अ ड्रॉबैक ऑफ द फूड चेन that the chemicals entered in the last trophic level will ultimately reach on to the next trophic level. अरे second one is the plants. नहीं. वैसा ही तो लग रहा है. 4 points clear है? 4 points clear है सबको? You have read in class 9th how water gets polluted. One of the reason is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crops from the diseases and pests. आज तुम्हारे दोस्त नहीं आए तो तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में? इधर उधर देख रहे हो, कभी इनको कभी उधर कभी. ध्यान दो. चलो. इसके बारे कौन सी क्लास? तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे मैं तो पास ही नहीं हुई. 2 घंटे ना. हाँ 2 घंटे. मैंने पास कर लिया, मैं भूल गई, मुझे नहीं आता. तुम लोगों को झोंका नहीं. ये एक्टिविटी प्लान का बस उसके बाद चैप्टर करा दो पूरा. एक छोड़ दो. भाई पोस्टर करा. मैं कहां पे आपको बैठा. पागल हो क्या? पोर्शन खत्म करना होता तो पिछले हफ्ते कर दिया होता. खत्म किया वो प्रिंसिपल ने. क्या? नाम एक साथ प्लांट Aquatic, okay. Pesticides और other chemicals simple है, 1 mark के लिए आ सकता है. क्यों यूज होता है? To protect the quality of the seeds. Pesticides और fertilizers यूज होते हैं. पेस्ट कंट्रोल के लिए हम क्या यूज करते हैं? खाना बंद करो ना अर्नवी. पानी नहीं पियोगे अभी बताओ. नहीं मत पी. These chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies. From the soil they are absorbed by the plants along with water and minerals, and from the water bodies these are taken up by the aquatic plants. Question लिखो. How do chemicals enter the food chain? हम जो आपके क्वेश्चन भी होते हैं आधे क्वेश्चन बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हो? बोल रहे आते थे क्वेश्चन इतने बड़े-बड़े इजी और इतना हार्ड? ये सबसे इजी चैप्टर है. यहाँ से स्टार्ट करो. The chemicals are either washed down into the soil or into the water body. From the soil they are absorbed by the plants along with water and minerals, and from the water bodies they are taken up by the aquatic plants. Next page पर कुछ है? लिख सकते हो. हार्ड कर दो. क्वेश्चन नंबर 28 पे लिखा है तो मैट्रिक्स बताना है. Animal stock. These chemicals are. इतनी जगह खाली की तुम लोगों ने टाइम पास किया. फोकट का उनको उधर भेजा. तो तुम्हारे साथ ऐसी बात करना पड़ता. These chemicals से लेके नेक्स्ट पेज एनिमल्स तक से these chemicals से नेक्स्ट पेज एनिमल्स तक. यहाँ पर ध्यान दो. डायग्राम 15.4 प्लीज मार्क इट. फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. जितने ज्यादा फ्लो चार्ट्स बनाओगे, जितने डायग्राम सपोर्ट करोगे अपने
बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स में उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। कुछ गलत भी लिखा होगा तो भी वो कंसिडर हो जाता है इफ़ यू मेक फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम। जहाँ सप्लाई कर सकते हो वहाँ बनाओ, टाइम वेस्ट मत करना धीरे धीरे डेकोरेट करने में। गर्ल्स बॉयज़ एनीबडी हु हैज़ दिस प्रॉब्लम प्लीज़ इसे फास्ट बना लो। ये बॉक्स नहीं बनाया, सिर्फ ऐसे फ्लो चार्ट भी बना लिया तो भी चलेगा। मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट बट ऑलवेज सप्लाई फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स वेर एवर पॉसिबल। गलती से भी मत छोड़ना, अगर तुम्हें आता है तो बनाओ ही। समझ में आ रहा है? अगर फ्लो ऑफ एनर्जी है, तुम्हें आंसर जो बुलेट पॉइंट्स अभी मार्क करवाए वो याद नहीं आ रहे हैं तो ये बना लो। ठीक है? क्लियर है? आ सकता है। This is one of the ways in which शांत रहो। भाई क्या बात नहीं कर रहा। This is one of the ways in which they enter the food chain. As these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively at each trophic level. As the human beings occupy, this comes for 1 mark. As the human beings occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies. This is known as biological magnification. Define biological magnification. इस चैप्टर में से थ्योरी क्वेश्चंस यही आते हैं, इसके अलावा नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड फूड चेन कंप्लीट करना, वो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? बहुत ट्रिकी आते हैं इसमें से क्वेश्चन। 5 मार्क का है तो इसका मतलब ये नहीं आप स्किप करके चले जाओगे। बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। कम है, 1-2 ही। As human beings occupy the top level in food chain, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल्स रहते हैं और इसे क्या बोलते हैं? Biological magnification. This is the reason why our food grains such as wheat, rice, vegetable, fruits and even meat contain varying amounts of pesticides. They cannot always be removed by washing or other means. Questions? What are the trophic levels? कर लिया है. What is the role of decomposers in ecosystem? कर लिया है.
क्वेश्चन नंबर 20